علامہ اقبال کہتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، صفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے لالہ فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم استقبال ہے۔ آج کلاس 12 کے لیے بہت ہی اہم کلاس ہے، بہت ہی اسپیشل کلاس ہے۔ یہ ایگزام اسپیشل کلاس ہے جس میں میں آپ کو پورے بک کی ریویژن کرواؤں گی۔ یہ آپ کی بہت ہی اسپیشل کلاس ہے، یہ ایگزام اسپیشل کلاس ہے۔ اس میں نے پورے بک سے سوال لیا ہے، اس میں پورے بک کا آپ کو ریویژن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے، کم سے کم آپ کے 50% کوشچن حل ہو جائیں گے۔ تو آپ میری ویڈیو کو پوری دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں، کیونکہ میں پوری ویڈیو میں آپ کو پورے کوشچن کے ساتھ ساری باتیں بتاتی چلوں گی، بہت کچھ بتاؤں گی۔ اس میں جو بھی کوشچن میں پڑھاؤں گی اس کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پورے بک کا ریویژن ہو جائے گا۔ ہر کوشچن کے ساتھ کچھ نہ کچھ بتاؤں گی، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پورے بک کا ریویژن ہو جائے گا۔ تو آپ اسکپ کیے بغیر پوری ویڈیو کو دیکھیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، افسانہ بجوکا کس ناول سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے؟ افسانہ بجوکا کیا ہے؟ کس ناول سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کی ناول گودان ہے، اسی سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ اور گودان میں ایک کردار ہے ہوری، اور ہوری پر ہی کہانی لکھی گئی ہے۔ گودان میں ہوری مر چکا ہے، بجوکا میں کیا ہے، ہوری بالکل بوڑھا ہو گیا ہے، اس کے پل کے بال پک گئے ہیں، اس کے بھاؤ پک گئے ہیں، وہ بہت بوڑھا ہے، وہ جھک کر چلتا ہے، اس کی کہانی لکھی گئی ہے، جس میں آپ کو میں نے کئی بات بتایا۔ آپ کا تو ایک کوشچن ہو گیا کہ بجوکا کس ناول سے متاثر ہو کر لکھا گیا، تو یہ گودان سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، گودان سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ اور گودان میں جو ایک کردار ہے ہوری، اس میں ہوری کی کہانی دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک افسانہ ہے، بجوکا کیا ہے، ایک افسانہ ہے۔ اس میں آپ کو 4-5 باتیں معلوم ہو گئی۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اگر ابھی بھی کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے اور اس کوشچن کو بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو آپ کو جو بک کا کوشچن ہے وہ سارا کوشچن سالو ہو جائے گا۔ پطرس بخاری کے انشائیے کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو پطرس بخاری کے انشائیے کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ مضامین پطرس نام ہے، ٹھیک ہے، مضامین پطرس۔ آگے دیکھتے ہیں، عود ہند اور اردو معلیٰ کیا ہے؟ عود ہند اور اردو معلیٰ کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپ کا سب سے پہلا چیپٹر ہے مرزا غالب کے خطوط، اور اس میں مرزا غالب نے اپنے 2 دوست کو خط لکھا، ایک اپنے شاگرد کو خط لکھا ہے اور ایک اپنے دوست کو خط لکھا ہے۔ منشی ہر گوپال تختہ کے نام ایک خط ہے، اور ایک خط ہے منشی نبی بخش حقیر کے نام خط ہے۔ اس میں آپ کو 2 خط پڑھنا ہے، اور جو غالب کے خطوط ہیں، اور غالب کے خطوط کا جو کتاب ہے اس کی بک کا کیا نام ہے ان کی؟ عود ہند اور اردو معلیٰ۔ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ تو مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، کیونکہ مرزا غالب کیا ہے، جو خط لکھتے تھے، جو چٹھی لکھتے تھے، وہ اس طرح سے لکھتے تھے کہ خط جس کو لکھ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامنے بیٹھا ہے اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ مراسلہ یعنی چٹھی، خط، اور مکالمہ یعنی بات چیت، تو انہوں نے خط کو کیا ہے، بات چیت کا ذریعہ بنا دیا۔ صاحبان عالی شان سے کیا مراد ہے؟ تو صاحبان عالی شان کسے کہتے ہیں؟ انگریزی حاکم کو کہتے ہیں، کیونکہ مرزا غالب کے وقت میں کیا تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا، اور اس وقت تو انگریز حاکم کو کیا کہا جاتا؟ صاحبان عالی شان۔ خواجی کس داستان کا کردار ہے؟ تو خواجی فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ خواجی کس داستان کا کردار ہے؟ تو خواجی فسانہ آزاد کا مشہور کردار ہے۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ تو فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک چیپٹر ہے خواجی ایک مطالعہ، جسے کس نے لکھا ہے؟ احتشام حسین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک میں جو ہے خواجی ایک مطالعہ کس نے لکھا ہے؟ احتشام حسین نے لکھا ہے۔ تو اس میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ خواجی کس داستان کا کردار ہے؟ تو خواجی فسانہ آزاد کا کردار ہے، اور فسانہ آزاد کی تصنیف کس نے کی ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار نے کی ہے۔
ख्वाजी एक मुताला किसने लिखी है? तो एहतशाम हुसैन ने लिखी है। ठीक है, ख्वाजी एक मुताला आपके बुक में है, किसने लिखी है? एहतशाम हुसैन ने लिखी है। बूदबाश के माने क्या होता है? बूदबाश के माने होता है रहन सहन। क्या होता है? रहना सहना। अलामती अफसाने का आगाज कब हुआ? तो अलामती अफसाने का आगाज 1960 के लगभग हुआ। उमराव जान अदा किसकी तसनीफ है? तो उमराव जान अदा क्या एक नावेल है, और किसकी तसनीफ है? और किसकी तसनीफ है? मिर्ज़ा हादी रुसवा की तसनीफ है। तो इसमें आपको उमराव जान अदा पर एक मुताला दिया गया है, जिसे किसने लिखा है? खुर्शीदुल इस्लाम ने लिखा है। वैसे उमराव जान अदा एक नावेल है, और किसकी लिखी हुई है? मिर्ज़ा हादी रुसवा की लिखी हुई है, लेकिन खुर्शीदुल इस्लाम ने इसका तनकीदी मजमून लिखा है। आइए आगे देखते हैं। अफसाना लम्हे के मुसन्निफ का नाम बताएं। तो अफसाना लम्हे किसकी लिखी हुई है? बलवंत सिंह की लिखी हुई है। अफसाना लम्हे में बलवंत सिंह क्या बताना चाहते हैं? इसका जो मरकजी ख्याल है वो क्या है? एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। ठीक है, बलवंत सिंह अपने अफसाना लम्हे में क्या बताना चाहते हैं? एक दूसरे के दुखों में शिरकत ही हकीकी इंसानियत है। अफसाना लम्हे के मरकजी किरदार कौन है? तो उमाकांत है। आपने अफसाना लम्हे ज़रूर पढ़ा होगा, तो उसका जो मरकजी किरदार है वो कौन है? उमाकांत है। क़र्रतुल ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? तो क़र्रतुल ऐन हैदर के वालिद का नाम सज्जाद हैदर यल्दरिम था। ठीक है, क़र्रतुल ऐन हैदर के अफसानों का मजमुआ सितारों के आगे जहां और भी है कब शाया हुआ? कब शाया हुआ? 1947 ईस्वी में शाया हुआ। मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं? 1797 यानी 1797 में। और कहाँ पैदा हुए? आगरा में। होरी कौन है? मैंने आपको अभी बताया कि होरी क्या है? मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। तो जवाब क्या लिखेंगे? होरी मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। फौजी के किरदार से मुतालिक सही जवाब कौन सा है? फौजी का जो किरदार है उससे मुतालिक सही जवाब कौन सा है? आपको इसमें 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसी का एक ऑप्शन का मैंने जवाब लिखा है। लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत। ये जो फौजी का किरदार है वो क्या है? लखनऊ के जवाल पजीर माशरत की अलामत है क्या? फौजी। सज्जाद ज़हीर के नसरी नज़मों के मजमुआ का क्या नाम है? अब सज्जाद ज़हीर के जो नसरी नज़मों का मजमुआ है क्या नाम है? पिघला नीलम। जज़्बी का असल नाम क्या है? जज़्बी का असल नाम मोइन अहसन जज़्बी है। बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने 12th क्लास का 2 क्वेश्चन पेपर कराया है, 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पर जाएंगे, क्लास 12th का प्लेलिस्ट देखेंगे जो 2024-25 के लिए मैंने तैयार किया है। उस प्लेलिस्ट को खोल के देखेंगे। मैंने इस बार 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया है। आप उससे बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। वो दोनों ही काफ़ी है आपके लिए तैयारी के लिए। और ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ इससे तैयारी कर लें। और 2 वीडियो मैंने और बनाई है, और 2 वीडियो मैंने आपकी ग्रामर की बनाई है। उन सारी वीडियो को आप देख लें, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो प्लीज़ सारी वीडियो को ज़रूर देखें, ध्यान से देखें और खूब अच्छी तरह से पढ़ें। और हमें कमेंट में लिखें कि आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। और हमें कमेंट में लिखें कि आपको जो CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। जज़्बी का असल नाम क्या है? जज़्बी का असल नाम क्या है? मोइन अहसन जज़्बी। ठीक है। उठी गुलरंग दरीचों से सहर झांकेगी, क्यों ना खुलते हुए जख्मों को दुआ दी जाए। ये शेर किसका है? तो ये शेर किसका है? जानिसार अख्तर का है। आपको सारे शेर भी याद करने हैं, और उसका आपको अपने गज़ल सारी पढ़नी है, और उनके राइटर का नाम भी याद रखना है, ताकि आपको जो शेर का तशरीह करने आएगा उसको करने में आसानी हो। नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए? तो नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? नज़म क्या है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। होरी कौन है? तो होरी प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया कि होरी क्या है? प्रेमचंद के नावल गोदान का एक किरदार है, और उसी होरी पर आपकी कहानी लिखी गई है, आपका अफसाना लिखा गया है बजूका। ठीक है। अफसाना बजूका के मुसन्निफ कौन है? तो सुरेंद्र प्रकाश हैं। अफसाना बजूका के मुसन्निफ कौन है? सुरेंद्र प्रकाश है। सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार ओबराय। इनका असल नाम क्या है पूरा? सुरेंद्र कुमार ओबराय। अफसाना सकून के नींद के मुसन्निफ कौन है? इकबाल मजीद हैं। शफी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? तो गया है। इनका आबाई वतन कहाँ है? गया है। बाहर की दुनिया में सज्जाद ज़हीर किस नाम से जाने जाते हैं? बन्ने भाई के नाम से जाने जाते हैं। पंजाब कमेटी का इजलास कब और कहाँ हुआ? तो 1937 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो कब हुआ? 1937 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। खुदनोश्त या आपबीती का क्या मतलब है? तो खुदनोश्त
का मतलब खुद नोश्त और आप बीती दोनों एक ही चीज़ है। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी का हाल बयान करता है, अपनी ज़िंदगी का कहानी लिखता है, तो उसे खुद नोश्त कहते हैं या आप बीती कहते हैं। और बायोग्राफी या सवाने उम्री, जब हम किसी दूसरे इंसान की कहानी लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी या सवाने उम्री कहा जाता है। अख्तरुल ईमान के आप बीती का क्या नाम है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है आपके बुक में, आपके निसाब में, और उसका नाम है इस आबाद खराबे में। जौहर मानी क्या होता है? जौहर मानी होता है तालाब। कृष्णचंद्र के पहले अफसानों का मजमुआ कौन सा है? कौन सा है? तुलसुम ख्याल। सबक पौधे क्या है और किसने लिखा है? तो सबक पौधे क्या है? रपूताज है, और किसने लिखा? कृष्णचंद्र ने लिखा है। इंशाया मच्छर किसकी तसनीफ है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी की तसनीफ है। गालिब जदीद शोरा की महफिल में के मुसन्निफ का नाम क्या है? कन्हैया लाल कपूर। आपकी किताब में है गालिब जदीद शोरा के महफिल में। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है। कृष्णचंद्र के रपूताज का उन्वान बताइए। तो कृष्णचंद्र का जो रपूताज है आपके बुक में, उसका नाम क्या है? पौधे है। खौजी और आज़ाद उर्दू के किस मशहूर तसनीफ के किरदार हैं? तो खौजी और आज़ाद फसाना आज़ाद के, जो फसाना आज़ाद दास्तान है, उर्दू दास्तान है, उसके किरदार हैं। नज़म गौरे गरीबा के शायर कौन हैं? तो नज़म गौरे गरीबा के शायर कौन है? नज़म तबा तबाई। और नज़म गौरे गरीबा अंग्रेज़ी नज़म थी। नज़म गौरे गरीबा क्या है? अंग्रेज़ी नज़म से उर्दू में तर्जुमा किया गया है, और अंग्रेज़ी नज़म का नाम था इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, अंग्रेज़ी नज़म थी इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसका उर्दू में तर्जुमा किया गया गौरे गरीबा के नाम से, और किसने किया? नज़म तबा तबाई ने किया। नज़म गौरे गरीबा किस ज़बान से तर्जुमा की गई है? तो अंग्रेज़ी ज़बान से तर्जुमा की गई है। ख्वाजा हसन नज़ामी अदब की किस सिन्फ के लिए मशहूर हैं? तो ये इंशाइया के लिए मशहूर हैं। और आपकी किताब में जो इंशाइया है इनका लिखा हुआ, वो कौन सा इंशाइया है? तो मच्छर, आपके बुक में मच्छर इंशाइया है, जो किसका लिखा हुआ है? ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। रूह आर्जी आदम का इस्तकबाल करती है, किसकी तसनीफ है? तो ये इकबाल की तसनीफ है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ और कब कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ और 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कायम हुआ। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कायम हुआ और 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कायम हुआ। कहानी क्लर्क के मौत के मरकजी किरदार का नाम क्या है? तो आपकी बुक में कहानी क्लर्क की मौत है, उसके जो मरकजी किरदार है उसका नाम है चेरू याकूब। वैक्यूम मोहम्मद बशीर की कहानी किस ज़बान में लिखी गई है? तो इनकी कहानी किस ज़बान में लिखी गई? मलयालम में। पितरस बुखारी के इंशाई मजमू का नाम क्या है? तो मुज़ामिन पितरस है। दक्कन का कौन सा मशहूर शायर पहली बार दिल्ली आया? तो पहली बार कौन आया? वली आए। वली मोहम्मद वली क्या है? पहली बार दिल्ली आए थे। रानी केतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो इंशाअल्लाह खां इंशा है। बागो बहार के मुसन्निफ कौन है? मीर अमन है। आपने बागो बहार का जिक्र ज़रूर सुना होगा। जब फोर्ट विलियम कॉलेज आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या है? बागो बहार का जिक्र है। और बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। और किसने लिखा था? मीर अमन ने लिखा था। सबक रोशनाई में सज्जाद ज़हीर ने किस कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है? पंजाबी किसान कॉन्फ्रेंस की तफसील बयान की है। ठीक है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी के मुसन्निफ कौन है? तो दिल्ली का दबिस्तान शायरी के मुसन्निफ नूरुल हसन हाशिमी हैं। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। ठीक है, नज़म जिंदगी से डरते हो किसकी तसनीफ है? तो ये नून मीम राशिद की तसनीफ है। नज़म जिंदगी से डरते हो। उर्दू ज़बान का असल माखज़ कौन सी बोली है, यानी उर्दू ज़बान कहाँ से निकली है? तो ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू सिंधी ज़बान से निकली है, ये नज़रिया किसने पेश किया है? तो सैयद सलेमान नदवी ने पेश किया है कि उर्दू सिंधी ज़बान से निकली है। मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और जिसके दोनों मिसरे क्या हम काफिया हों। ठीक है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिए हों। मरहूम की याद में किसका मरसिया है? तो ये पितरस बुखारी का मरसिया है। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? अगर आपने सबक रोशनाई पढ़ी होगी तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो इकबाल से होती है। किस शायर को जदीद बुनियाद गुज़ारों में शुमार किया जाता है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद बुनियाद गुज़ारों में शुमार किया जाता है। एक अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं और एक मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। क्लर्क की मौत का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो चेखफ ने किया। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है। ठीक है,
इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? अख्तरुल ईमान की आप बीती है। असारुस सनादिद किसकी तसनीफ़ है? तो असारुस सनादिद सर सैयद अहमद खान की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद खान ने कई किताबें लिखी हैं। आपको कम से कम 2-3 किताबों के नाम याद रखना चाहिए। उर्दू किस बोली से निकली है? तो उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ठीक है। रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ है। शफ़ी जावेद के अफसाने का नाम क्या है? बलवंत सिंह, फोटोग्राफर, मैं वो। तो इनके अफसाने का नाम क्या है? मैं और वो, ठीक है। किसने अपना तखल्लुस हाली रखा? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। रपूर ताज पौधे का मुसन्निफ कौन है? कौन है? कृष्णचंद्र है। आपने पढ़ा रपूर ताज क्या है, पौधे क्या है? एक रपूर ताज है और इसके मुसन्निफ कृष्णचंद्र हैं। यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो यहूदी की लड़की का जो ताल्लुक है वो ड्रामा है, ठीक है, ये एक ड्रामा है। कहानी कलर की मौत का तख्लीक़कार कौन है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? चेखव। इसमें से कौन सा शायर नहीं है? तो इसमें से गालिब, क़रतुल ऐन हैदर और अख्तरुल ईमान। तो अख्तरुल ईमान शायर हैं, गालिब एक शायर हैं और क़रतुल ऐन हैदर क्या है? एक नावल निगार हैं, अफसाने निगार हैं। खौजी किस नावल का किरदार है? तो आपने भी पढ़ा खौजी फसाना आज़ाद का किरदार है। मरहूम की याद में किसका इंशाइया है? तो मरहूम की याद में पितरस बुखारी का इंशाइया है। पौधे का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? तो पौधे का ताल्लुक रपूर ताज से है। पौधे क्या है? एक रपूर ताज है। और किसने लिखी है? तो कृष्णचंद्र ने लिखी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पूरी देखिए और इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है और इस वीडियो को पूरी देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, कई बार इसको पढ़ लीजिए, तो आपके कम से कम 50% तैयारी हो जाएगा। और मैंने 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाया है, उन दोनों से भी आप ज़रूर तैयारी कर लें ताकि आपकी तैयारी क्या है बहुत अच्छी तरह से हो जाए। अफसाना फोटोग्राफर किसने लिखा है? तो किसने लिखा? क़रतुल ऐन हैदर ने लिखा है। अपनी ज़िंदगी के बारे में किस अदबी सिन्फ के तहत लिखा जाता है? सफ़रनामा, खुदनोश्त या खाका? तो इसे क्या कहते हैं? अपनी ज़िंदगी के बारे में जब हम कहानी लिखते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद से लिखते हैं तो उसे खुदनोश्त कहा जाता है या आपबीती भी कहा जाता है। रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात किस शायर से होती है? तो रोशनाई में सज्जाद ज़हीर की मुलाकात इकबाल से होती है। मुंशी हरगोपाल तफ्ता को किसने ख़त लिखा? तो गालिब ने ख़त लिखा है, ठीक है। जज़्बी का पूरा नाम क्या है? मोइन एहसन जज़्बी है। कहानी कलर की मौत का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो किसने किया है? चेखव ने किया है। इनमें से किसको जदीद नज़म की बुनियाद गुजारों में शुमार किया जाता है? किसे किया जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को किया जाता है, ठीक है। मज़मून ख्वाजी एक मुताला किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? एहतशाम हुसैन ने लिखा है। मीर अमन की किताब का नाम क्या है? तो मीर अमन की किताब का नाम क्या है? बागो बहार है। जब आपने फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा होगा तो उसमें ज़रूर पढ़ा होगा कि मीर अमन ने क्या लिखा था? बागो बहार किताब लिखी थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन किस साल कायम हुआ? तो अंजुमन तरक्की मुसन्निफीन किस साल कायम हुआ? 1936 ईस्वी में कायम हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो ये 1800 ईस्वी में कायम हुआ। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में ये कायम हुआ है। लखनऊ का पहला दीवानी शायर कौन था? तो लखनऊ का पहला दीवानी शायर वली दकनी था। एक क्वेश्चन आपको है कि उर्दू का पहला दीवानी शायर कौन था? तो उर्दू का पहला दीवानी शायर कुली कुतुब शाह था, ठीक है। और लखनऊ का पहला दीवानी शायर कौन था? वली दकनी था। इस आबाद खराबे में किसकी आप बीती है? तो अख्तरुल ईमान की आप बीती है। मीर अमन देहलवी का ताल्लुक किस अदारे से था? तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से था। मुंदरजा ज़ैल में किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था? किसका था ताल्लुक? फैज़ अहमद फैज़ का था, ठीक है। सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला? तो 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब मिला। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।